اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے تشکر نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے تو سب سے بڑا اللہ نے جو احسان کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے انسان کو، وہ ہے اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ تمام چیزیں انسان کے تابع ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے خالق حقیقی کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ کفران نعمت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، جس کی ضد ہے کفران نعمت۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافہ و زیادتی کا باعث ہے، کفران نعمت نعمتوں میں زوال کا سبب ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسا اللہ کے لیے روزہ رکھنے کا ہے۔ اس طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فعرف ربہ، جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا، غور کیا، فکر کی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، جس نے اپنے صرف ذات پر بھی غور کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں، کان عطا کیے ہیں، زبان عطا کی ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں، یہ سب کچھ صحت عطا فرمائی ہے، عقل و شعور عطا کیا ہے، یہ تمام نعمتیں، اور اس کے باوجود قرآن میں بھی ہے کہ انسان ناشکرا ہے، صرف اپنی زبان پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، شکرن للہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص ہر نعمت پر زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور دولت عطا فرماتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس زبان سے اپنے خالق حقیقی کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی طرح آنکھ عطا کی ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کان عطا کیے ہیں سماعت کے لیے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاتھ عطا کیے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو، اور ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں چلنے کے لیے، ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں ہمارا خدا راضی ہو، اور پھر ہم اس کے ذریعے خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، انسان کی زبان پر یہی کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت کا ہر وقت الحمدللہ
शुक्रन लिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज कहने वाला शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाता है। कितने मुश्किल अल्फाज हैं। बंदा अगर खालिक हकीकी का यही अल्फाज से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता तो ये कुफरान नेमत है। जिस तरह हज़रत मूसा जा रहे थे कोहतूर पर, रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में देखा एक आबिद इबादत कर रहा है। करीब से गुजरा, उस आबिद ने बुलाया, आपने सलाम किया, कहा कौन हो? उस आबिद ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। और उस आबिद ने पूछा आप कौन हैं? जनाब मूसा ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहाँ जा रहे हो? जनाब मूसा ने कहा मैं कोहतूर पर जा रहा हूँ, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। इसके बाद उसने कहा कि तुम जा तो रहे हो, मेरा एक पैगाम देना, अल्लाह से पूछना कि तेरा बंदा कह रहा है मुझे 100 साल हो गया है, मैं इबादत कर रहा हूँ, बताओ मेरा कितना मकाम है, कितने महल्लात हैं जन्नत में, किस कदर होंगे, ये तमाम मुझे बताओ। जनाबे मूसा ने उसी वक्त अपने अल्लाह से दुआ मांगी और वही हुई नबी को कि मेरे इस आबिद से कह दो कि तुमको कल बता दिया जाएगा। जनाब मूसा वापस चले गए और ये जब सुबह हुई, दस्तूर था उस आबिद का, सुबह होते ही वो साथ एक नहर थी, वहाँ से पानी लाता और पीता रहता था। जब वो गया नहर की तरफ, रास्ता भूल गया, तलाश करते करते उसे वो नहर न मिली। अब वो एक पहाड़ी पर जा बैठा, उसके आसाब जवाब दे चुके थे, सकत खत्म हो चुकी थी, बस चलने के काबिल नहीं था। और दुआ मांगी, ऐ खुदा मेरी रहबरी फरमा। प्यास बहुत ज्यादा थी, अल-अतश की आवाज। तो सामने देखा एक आदमी आ रहा है, कुछ सामान सफर भी उसके पास है, बस उसे उम्मीद पैदा हो गई उसके दिल में। करीब आया और बुलाया उसको, आए बंदे खुदा मेरी तरफ आ। वो बंदा आया, उस आबिद ने कहा है अब्द खुदा मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, आपके पास पानी है, मुझे पानी दो। उस आबिद ने कहा ये मेरी ज़रूरत के लिए है। ये कह रोने लगा, फरियाद करने लगा, आहो बुका करने लगा और कहने लगा अल्लाह के बंदे मुझे दो, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। उस बंदे ने कहा एक शर्त पर मैं तुझे पानी दूंगा। कौन सी शर्त? आबिद से कहा कि मैं एक गिलास पानी का दूंगा और आपके 100 साल की इबादत लूंगा। उसने कहा मंजूर है, मैं और इबादत कर लूंगा। उसे पानी दिया, वो चला गया। आबिद भी वापस आ गया। नबी को वही हुई, ऐ मूसा मैंने आज उसे बता दिया है 100 साल की इबादत सिर्फ एक दिन के एक गिलास के बराबर हुई है उसकी। कल उससे जाकर कहना खुदा कह रहा है तेरी 100 साल की इबादत सिर्फ एक नेमत और वो भी एक दिन और वो भी एक गिलास के बराबर हुई है। अब बाकी बताओ जो तूने 100 साल अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया है उसका सिला क्या दोगे? सुबह हुई, जनाब मूसा उसके पास गए, सलाम किया, आए अब्द खुदा सुनाओ। उसने कहा हाँ मैं गया था, रास्ता भूल गया और मैंने 100 साल की इबादत एक गिलास के बदले दे दी।
जनाब मूसा ने कहा, अब इल्म हुआ कि तू कह रहा था कि मेरे 100 साल की इबादत का क्या मकाम है, कितने महल्लात होंगे, कैसे कैसे होंगे। अल्लाह ने आपको बता दिया है, अय अब्द खुदा, तूने तो एक दिन की इबादत के बदले 100 साल की इबादत दी है, और बाकी जो दिन हैं उम्र में जितनी आप नेमतें इस्तेमाल की हैं उसका बदला कौन देगा। इसलिए खुदावंद ताला की किस किस नेमत को जुठलाओगे। सूरत रहमान में इसलिए कहा गया है, ज़रा गौर करो, फिक्र करो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें एक अशरफुल मखलूकात का दर्जा देकर तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है। क्या तुम फिक्र नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते? चाहिए कि तुम अल्लाह का शुक्र और फिक्र करो। जब भी तुम्हें कोई नेमत अता हो, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह की किसी अजीम नेमत को देखो, सुबहान अल्लाह। ये तमाम चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया अदा करें और उसकी खुशनुदी के लिए हर वो काम करें जिस पर वो राज़ी हो, हर काम से रुक जाएं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी और उसकी रसूल की नाफरमानी हो। हम दुआ करते हैं, अल्लाह से इल्तजा है, ऐ खुदा हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।